اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام روزمرہ کی زندگی سے لطف اندوز ہونا میں شامل ہونے کا شکریہ۔ میں بہت خوش ہوں کہ آج آپ میرے ساتھ ہیں۔ حال ہی میں نے امثال کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے اور اس کے بارے میں لکھنا بہت ہی دلچسپ تھا اور یہ تھوڑا مشکل بھی تھا کیونکہ امثال کے 31 ابواب میں بہت سے مضامین کے بارے میں بات کی گئی ہے، مگر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ذائقہ چکھانا چاہتی ہوں کہ حکمت کتنی بیش قیمتی ہے اور میرا ایمان ہے کہ یہ واقعی آپ کی مدد کرے گا۔ سب سے پہلے حکمت کیا ہے؟ حکمت علم کا صحیح استعمال ہے۔ کسی چیز کے متعلق جاننا اس وقت تک فائدہ مند نہیں جب تک آپ اس کا درست استعمال نہ کرنا جانتے ہو، اور میں سمجھتی ہوں ہم جس وقت اور گھڑی میں جی رہے ہیں یہاں ہر جگہ علم، یا آپ کہہ سکتے ہیں نام کا علم موجود ہے، اور بائبل دانییل کی کتاب میں کہتی ہے آخری زمانہ میں بھتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج یہی سچ ہے۔ میرا مطلب اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں، حتیٰ کہ کلام کا علم بھی وافر مقدار میں دستیاب ہے، یعنی آپ 10 مختلف مضامین پر کچھ ہی دنوں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی لیے فکر کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس حوالے سے علم تو بہت ہے، مگر حکمت علم کا درست استعمال ہے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس علم ہے اور ہم اسے اپنی زندگیوں میں استعمال نہیں کر رہے تو وہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہاں کچھ پل کے لیے رکنا چاہیے، کیونکہ صرف اس لیے کہ آپ نے چرچ میں کچھ سنا یا اپنی بائبل میں اس پر نشان لگایا یا آپ کے پاس گھر میں اس کے متعلق ایک کتاب موجود ہے جو آپ نے پڑھی ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اس پر عمل بھی کر رہے ہوں۔ اور ہم سب کو اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ ہم محض کلام سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے، بلکہ یہ جانیں کہ صحیح کیا ہے اور گناہ نہ کریں۔ ہم صرف گناہ نہیں کرتے بلکہ ان کاموں کو جو ہمیں کرنے چاہیے انہیں اپنی زندگی سے نکال کر بھی گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی بات پر عمل نہیں کرتے تو اس کا علم رکھنا بے فائدہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں آج بہت سے لوگ علم سے بھرے ہوئے ہیں اور ان پر ابھی تک اس کا مکاشفہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے آج ہم گہرائی میں جانے کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے، اور اس حوالے سے پولوس نے کہا اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو معلوم کروں۔ وہ صرف یسوع کو جاننے کی بات نہیں کر رہا تھا، میرا مطلب وہ اسے واقعی جاننا چاہتا تھا، اور آج آپ بھی جانیں گے جب میں پولوس رسول کی کچھ دعائیں آپ کے ساتھ بانٹوں گی جن کے بارے میں اس نے بہت گہری اور سمجھ کے ساتھ اور علم اور سمجھ کے ساتھ یہ بات کی، اور یہ کہ اکثر اوقات ہم سب دنیاوی چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے۔ ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں نوکری میں ترقی چاہیے، اپنے خاندان کے لوگوں میں تبدیلی چاہیے، ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے، ایک بڑا گھر یا ایک نئی گاڑی یا کچھ اور۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر اوقات غلط چیزوں کی خواہش کرتے ہیں۔ اس لیے غور کریں تو پولوس رسول کی دعاؤں میں جو اس نے کی، آپ کو کہیں بھی لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی دعا نہیں ملے گی، لیکن دیکھیں اس نے یہ دعا ضرور کی کہ وہ جس بھی مشکل سے گزر رہے ہیں وہ اس سے گزرنے کے لیے تقویت حاصل کریں اور مستحکم رہیں تاکہ ایک اچھا رویہ اختیار کریں اور حالات انہیں تبدیل نہ کرنے پائیں۔ لیکن سچ کہوں میرے پاس کبھی بھی کوئی دعا کے لیے نہیں آیا جس نے کہا ہو جوائس کیا تم میرے لیے دعا کرو گی کہ میں اچھے رویے کے ساتھ اس دور سے گزر سکوں۔ ہر کوئی ان چیزوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے جو انہیں دکھ پہنچاتی ہیں، اور پولوس نے کبھی بھی ان کے لیے کسی بھی دنیاوی چیز کے لیے دعا نہیں کی، لیکن اس نے ان گہری باتوں کے لیے دعا کی جو کہ کئی زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ دیکھیں امثال ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم خدا کی حکمت میں چلیں گے تو باقی سب چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں اس کے وسیلہ مل جائیں گی۔ میرا مطلب وہ وعدے جو امثال میں ہے کہ خدا ہمارے لیے کیا کرے گا جب ہم حکمت میں چلیں گے وہ حیرت انگیز ہیں۔ میرا مطلب دولت اور عزت اور ترقی اور عمر کی درازی، اچھی صحت اور وہ سب چیزیں بھی جو ہمیں واقعی اپنی زندگی میں چاہیے اگر ہم حکمت میں چلیں تو۔ اب دیکھیں ہر ایک شخص جو امثال کی کتاب لے، اس کا مطالعہ کرے اور اس میں لکھے ہر ایک اصول پر عمل کرے تو اس کی زندگی حیرت انگیز ہو جائے گی۔
मेरा मतलब वो ऐसी हो जाएगी, यानी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। तो देखें, बेशतर इसके कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचें कि आप जिंदगी में उन चीजों पर अमल कर रहे हैं जो आप कहते हैं कि आप जानते हैं, या अक्सर आप अपने आप को ये कहते सुनते हैं, मैं जानती हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मगर इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तरह ये जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आप अभी तक नहीं कर रहे। लेकिन आप जानते हैं हिकमत बसीरत की गहराई है जो सतही चीजों से कई गुना बढ़कर है। हिकमत हमें चीजों की सतह से कई गुना बढ़कर चीजें दिखाती है कि हकीकत में वो क्या है। हिकमत हमारे जज्बात से बढ़कर हमें दुरुस्त बातें बताती है। अब देखें, आप जानते हैं हम जिस्म रखते हैं और जिस्म गोश्त और रूह से बना हुआ है, और खुदा क्या चाहता है, वो हमारी रूह में रहना चाहता है और हमारी रूह पर इख्तियार पाना चाहता है। अगर रूह और अकल इख्तियार में हो तो इब्लीस पहले ही जीत चुका है। अकल, जहन, ख्वाहिश और जज्बात हैं, और इसी तरह अक्सर औकात लोग अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोचों और अपनी ख्वाहिशात के ताबे होकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मैं ये चाहती हूँ, वो चाहती हूँ, मैं ये महसूस करती हूँ, मगर इमसाल हमें सिखाती है कि हमें इस सब से आगे बढ़ना है, हमें अपने जज्बात से बढ़कर जीना है। मेरा मतलब हमारे जज्बात असल हैं, और जानते हैं हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारे जज्बात नहीं हैं। हमारे जज्बात तो हैं, लेकिन हमें उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना। हम जहन में कितनी मर्तबा ये सोचते हैं, वो सोचते हैं, ये सोचते हैं, मगर खुदा का कलाम क्या कहता है और हम क्या चाहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जानते हैं खुदा ने हमें जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करने के लिए नहीं बुलाया जो हमें चाहिए, उसने हमें अपनी मर्जी पूरी करने के लिए बुलाया है। अगर हम उसके ताबे हो जाएं तो हम वो सब हासिल कर लेंगे जो हम चाहते हैं। मैं आज जानना चाहती हूँ, क्या आप खुदा के साथ गहरा ताल्लुक चाहते हैं, या आप महज अपने जहन को इल्म से भर रहे हैं और इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर रहे। और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इमसाल लिखना मेरे लिए मुफीद था। आज इसे सिखाने के लिए इसका मुताला करना मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनकी हमें याद दहानी होनी चाहिए। हिकमत में फहम शामिल है और ये मेरे लिए निहायत पसंदीदा है, और इन पर सोचना और गौर व फिक्र करना मुझे पसंद है, और हम इसके बारे में बाद में मजीद बात करेंगे। मगर फहम कुछ ऐसा है जो आपके जहन से नहीं निकलता, यह आपकी रूह से आता है, और इसीलिए अगर हम सही और गलत का इम्तियाज करना सीख जाएं और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें तो ये हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा बेहतर कर देगा। मगर आप देखें, गहराई में जाना ज्यादा वक्त लेता है, और मसला ये है कि हम जल्दी में हैं और बेसब्रे हैं, और इसीलिए अगर हमें महसूस हो कि हमें ये चाहिए और हमें इसे हासिल करना है, अगर हम हिकमत में चलेंगे, हम चीजों को सोचने और समझने में ज्यादा वक्त लेंगे कि हम वाकई क्या कर रहे हैं। हिकमत हमेशा बात के बारे में सोचती है। हकीकत तो यह है, हिकमत की बहुत तारीफें हैं और सब बहुत उम्दा हैं, मगर मेरी अपनी एक तारीफ है जो मुझे पसंद है। हिकमत हमेशा अभी वो करती है जिससे वो बाद में खुशी हासिल करे। जानते हैं, एक अहमक इंसान कभी बाद के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ हाल में अच्छा महसूस करना चाहता है, मगर बाद का वक्त हमेशा आ जाता है। ये बात समझिए, बाद का वक्त हमेशा आ जाता है, और लिखा है जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। तो अगर आप बुरा बीज या नाफरमानी का बीज बोएंगे तो शायद कुछ अरसे तक ऐसा महसूस हो कि आप उससे बच रहे हैं, मगर आखिरकार हम उन बीजों का फल भी काटेंगे जो हमने बोए हैं। अगर हम फर्माबरदार हैं तो हम वो बीज काटेंगे, और अगर हम नाफरमान हैं तो हम वो बीज काटेंगे। इब्रानियों 12:11। और बिल फेल हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है, मगर उनको बाद में सहते सहते पुख्ता हो गए हैं, चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। फर्ज कीजिए कोई शख्स जिस्मानी तौर पर चुस्त नहीं और उसे वजन कम करने की जरूरत है। अब देखें, आप जानते हैं किसी को भी भूखा रहना पसंद नहीं है, और अगर मैंने बहुत अरसे से बहुत ज्यादा खाना खाया है और मैं वजन कम करना चाहती हूँ तो इसके लिए मुझे कम खाना खाना होगा, और मैं काफी अरसा भूखी रहूंगी और मुझे ये पसंद नहीं आएगा और मैं इसमें आरामदेह महसूस नहीं करूंगी। लेकिन जब मैं अपना वजन 20 किलो कम कर लूंगी तो मैं इसे बेहद पसंद करूंगी। बात का वक्त हमेशा आता है। इमसाल 1 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक
हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। अब देखें, किसी भी वक्त आप किसी ऐसे शख्स से मिलें जिसे आप कुछ भी नहीं बता सकते, और अगर आप उन्हें किसी चीज के बारे में तजवीज करें जिसके बारे में वो गलत हों, तो वो उसकी वजह से गुस्सा हो जाएंगे। तो यानी आप एक अहमक इंसान से मिले हैं, क्योंकि दरअसल एक अक्लमंद इंसान, बाइबल कहती है, उसे इस्लाह पसंद है। अब मैं ये इकरार करना चाहूंगी कि मैंने आखिरकार ये सीख लिया है कि जब भी कोई मुझे दुरुस्त करे तो मुझे गुस्सा नहीं होना, मगर मैं अभी भी इसे पसंद करने पर काम कर रही हूँ। मेरे ख्याल से हम में से किसी को भी ये पसंद नहीं कि कोई हमें ये बताए कि हम गलत हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम उनसे तंबी हासिल करें जो हमें अक्लमंदाना तंबी करते हैं। खुदा का खौफ वो क्या है? ये ऐसी चीज नहीं जिसका जिक्र आपने अक्सर सुना होगा। हकीकत तो ये है कि मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में इस हवाले से ज्यादा बात करनी चाहिए। खुदा का खौफ क्या है? इसका मतलब खुदा से डरना नहीं है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो भला है, वो हमें दुख नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब खुदा के लिए अकीदत और एहतराम रखना है, जिससे आप जानें कि वो कितना ताकतवर है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वो कुछ कहता है तो उसे पूरा करता है, और इसीलिए आप उसकी कही बातों के खिलाफ नहीं जाएंगे, इस उम्मीद पर कि आप उसमें से गुजर जाएंगे। जब डेव और मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे और वो छोटे थे, और क्योंकि मेरी परवरिश आप जानते हैं अच्छे माहौल में नहीं हुई थी और मुझे बहुत सी नाजायज सजाएं मिली, मेरे लिए मुश्किल था, और अक्सर औकात इसी वजह से मैं निहायत ही बच्चों से सख्त हो जाती, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो फर्ज कीजिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि मैं ये कहती, तुम अब 30 दिन के लिए घर से बाहर नहीं जाओगे, और जब गुस्सा ठंडा हो जाता तो पता चलता कि ये सजा मेरे लिए थी, उनके लिए नहीं, और इसलिए उनके लिए आसान था कि मुझसे बात करके मेरा जहन तब्दील कर देते। मगर मेरे शौहर डेव ऐसे नहीं थे। वो उस सजा के बारे में सोचते थे जो वो देने वाले थे और कहते, और जो वो कहते थे वो पूरा करते थे, और बच्चे जानते थे कि जो उन्होंने कहा है वो पूरा होगा, और इसलिए वो डेव के साथ ज्यादा अकीदत भरा खौफ रखते थे बनिस्बत मेरे, और हमें खुदा के लिए वो अकीदत भरा खौफ रखना है। ये कुछ ऐसा है जो वाकई लोगों में गायब है। इस वक्त दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो खुद को मसीही कहते हैं और सोचते हैं कि वो कोई भी काम कर लेंगे और उससे बच जाएंगे। खैर, खुदा सब समझता है। आप जानते हैं ये 21वीं सदी है। आप जानते हैं खुदा ला तब्दील है। वो आज कल बल्कि अबद तक यकसा है, और उसका कलाम जो कि 100 साल पहले असर रखता था आज भी रखता है। लिखा है कि हमें समझने की जरूरत है। मैं दरअसल इमसाल में मौजूद 7 बुनियादी उसूलों के बारे में बात कर रही हूँ, और वो है हिकमत, समझ, फहम, इल्म और खुदा के लिए अकीदत वाला खौफ, समझदारी और शऊर। और मुझे नहीं याद कि अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो, मगर हम आज उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये वो सब चीजें हैं जो हम देखते हैं, और ये सब गहरी चीजें हैं, ये दुनियावी चीजें नहीं है। समझ का मतलब जहन या जहानत, सोच की अक्कासी, इल्म या फिर जहन से समझना। आप जानते हैं स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है, उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाया जाता, बल्कि उन्हें उनके तख्लीकी काम पर टेस्ट दिए जाते थे। दूसरे अल्फाज में, एक शख्स एक किताब बहुत जल्दी पढ़ता होगा, शायद वो समझ ना पाता हो कि वो क्या पढ़ रहा है, और मेरे ख्याल से वक्त के साथ आप जितना एक चीज पर गौर करते हैं, आप उतना ही ज्यादा उसे समझ पाते हैं। मरकज 4 बाब में लिखा है, जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको ज्यादा दिया जाएगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या जब आप चर्च में होते हैं तो आप नोट्स बनाते हैं, या शायद उस मैसेज की एक कॉपी खरीदते हैं और फिर वाकई उस कलाम को लें और शायद अगले हफ्ते अपनी जाती बाइबल स्टडी में वक्त गुजारें और मुताला करें और उन आयात का मतलब तलाश करें, गौर करें, उसके बारे में दुआ करें कि ये क्या कहती है। देखें, मेरे ख्याल से मेरा ये मतलब है कि मैं आज कहती हूँ कि हमारे पास तमाम इल्म है, मगर हम में वाकई कितनी हिकमत है। कितने ही लोग चर्च जाते हैं। फर्ज करें आप चर्च गए और मैं ना जा सकी, और मैंने पूछा कि आज का कलाम कैसा था। ओ, जबरदस्त था, कलाम बहुत ही जबरदस्त था। तो आज पास्टर साहब किस बारे में तालीम दे रहे थे? और कभी कभार 1 घंटे बाद जब आप चर्च से निकलते हैं
آپ یاد بھی نہیں رکھ پاتے کہ کلام کس بارے میں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سطحی طور پر اس پر دھیان دے رہے تھے، مگر اس طور پر نہیں جہاں یہ آپ میں جڑ پکڑ لیتا۔ میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں کلام ہمیں بہت زیادہ دستیاب ہے اور ہم مضمون سے مضمون جانتے رہتے ہیں اور کسی چیز پر اتنی دیر غور و فکر نہیں کرتے کہ اس کا ہماری زندگی میں مکاشفہ ہو۔ میں بشدت چاہتی تھی کہ مجھ پر خدا کی غیر مشروط محبت کا مکاشفہ ہو، اور دیکھیں مجھے یہ صرف ایک آیت پڑھنے سے حاصل نہیں ہوا، مجھے پورے 1 سال تک خدا کی محبت کے بارے میں پڑھنا پڑا اس سے پہلے کہ وہ واقعی میرے لیے ایک حقیقت بنا۔ اور اب میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اب پریشانی میں کبھی خدا سے نہیں کہتی کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ یہ اس سے اتفاق رکھتا ہے جو امثال 8 باب میں فتح سے بڑھ کر غلبہ پانے کے بارے میں لکھا ہے۔ امثال 8 نہیں معاف کیجیے گا، رومیو 8 باب، اور یہ کہ کچھ بھی ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہے، اور اس لیے ہمیں یہ باتیں گہرائی میں جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ خدا ہر پل میرے ساتھ ہے، چاہے میں اس کی موجودگی کو محسوس کر سکوں یا نہیں، یا ایسا محسوس ہو کہ وہ ہے یا وہ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ وہ ہے، مگر میں نے اس پر بہت عرصہ مطالعہ کیا۔ اب پولوس کی دعائیں، میں انہیں یہاں لفظ ب لفظ نہیں پڑھوں گی، میں آپ کو تجویز کروں گی کہ آپ انہیں دیکھیں اور پڑھیں کیونکہ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ افسیوں پہلے باب میں موجود ہیں، اور افسیوں 3 باب، فلپیوں پہلا باب، کلسیوں پہلا باب، اور دوسرا تھسلنیکیوں پہلا باب۔ لیکن آئیں صرف افسیوں 1 باب دیکھیں۔ وہ کہتا ہے میں اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ آپ جانتے ہیں کوئی شاید کہے میں جوائس پائر کو جانتی ہوں، مگر آپ مجھے ڈیو جیسا نہیں جانتے، اور ڈیو مجھے ویسا نہیں جانتے جیسا خدا مجھے جانتا ہے، اور میں خود کو بھی ویسا نہیں جان پاتی۔ تو جاننے کے بھی درجے ہیں اور سمجھنے کی بھی سطح ہے، اور ہمیں ہمیشہ اور گہرائی میں جاننے کی خواہش رکھنی چاہیے پولوس کی طرح، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ مجھے پولوس کی یہ دعائیں بہت پسند ہیں۔ اس نے کہا نور سے بھر جائیں تاکہ تو اس امید کو جانے اور سمجھے اور جس کے لیے اس نے تجھے بلایا، تاکہ تو جانے اور سمجھے کہ اس کی بے شمار لامحدود سمجھ سے بالا اور عظیم قدرت کیا ہے۔ اگر ہم واقعی جان سکتے کہ خدا کتنا طاقتور ہے اور یہ کہ اس کی طاقت ہم میں بستی ہے اور ہمیں دستیاب ہے، ہماری زندگی میں اتنے ڈر نہ ہوتے جتنے اس وقت ہیں۔ پھر افسیوں 3 باب میں وہ خدا کی محبت کی گہرائی کے بارے میں اکثر بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ تم محبت میں جڑ پکڑو اور بنیاد قائم کرو، اور یاد رکھیں جب آپ کسی بھی بات کی گہرائی میں جائیں گے تو اس میں وقت لگتا ہے۔ یہ کچھ ایسا نہیں جو آپ بے صبرے ہونے سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ اس کے ساتھ جڑے رہنے اور وقت دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ واقعی جان جائیں تجربے کے ذریعے سے خدا کی محبت کی اونچائی اور گہرائی سے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کر سکتی ہوں جیسے پولوس کی دعائیں۔ اس نے کہا اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے۔ اب دیکھیں آپ سب جو اس وقت گھر پر ہیں یا کہیں بھی ہیں، کہیں گہرا دیکھیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم گہرائی میں جائیں۔ اچھا، لوکا 5 باب میں ایک اچھی کہانی ہے۔ پہلی 7 آیات جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ وہ ختم کر چکے تھے اور جال دھو رہے تھے اور سب سمیٹ رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل،
और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। जानते हैं वो सारी रात जाल डालते रहे मगर कुछ हाथ ना आया। जानते हैं मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना वक्त सब मसीही उसूलों पर सर्फ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी दुरुस्त नहीं हो रहा था। वो इसलिए कि मैं सतही तौर पर जी रही थी। मैं मुआशी हालात के लिए ज्यादा परेशान थी, एक नया कोट खरीदने में और एक बड़ा घर खरीदने के लिए। और आप जानते हैं मैं अपना ईमान इसलिए इस्तेमाल करती थी और मैं इसे सब गलत वजूहात के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मत्ती 6 बाब बाइबल में लिखा है, अगर तुम तलाश करो, और ये एक ऐसा लफ्ज है जो कि ऐसा है अपने सारे दिल से किसी चीज के पीछे जाना। तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। तो अगर हम दुरुस्त चीजों की तलाश करें तो बाकी चीजें भी हासिल कर लेंगे। तो उसने उनसे कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया। मुझे ये बहुत पसंद है मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। आपने देखा मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। आज चाहे मैं कैसा ही महसूस कर रही हूँ, अगर खुदा ने कलाम में लिखा है कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना, तो मुझे उसके कलाम के मुताबिक जीना है, अपने जज्बात के मुताबिक नहीं। और मुझे ये बहुत पसंद है कि पतरस ने कहा, देख हम ये नहीं करना चाहते हमें लगता है कि ये काम भी नहीं करेगा, हम थक चुके हैं, हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, लेकिन अगर आप हमें ये करने को कहेंगे तो हम ये करेंगे। ये जबरदस्त है। लिखा है, और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो, और उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। मेरे ख्याल से जब हम वाकई खुदा को गहराई से तलाश करते हैं और हम वाकई खुदा के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, तो मेरा ईमान है कि ना सिर्फ हमारी जिंदगी बहने लगेगी बल्कि हम दूसरों को सिखा सकेंगे और हैरत अंगेज तौर पर दूसरों की मदद कर सकेंगे। इमसाल इल्म के बारे में बात करती है, समझदारी के बारे में बात करती है। समझदारी क्या है? इसका मतलब अच्छा इंतजाम करना है। ये एक बहुत अच्छा लफ्ज है। इसका मतलब समझ और अमली हिकमत होना है। समझदारी और हिकमत अमली आपके तमाम वसाइल के इंतजामात के लिए एक समझदार आदमी जानता है कि अपने माल का इंतजाम कैसे करना है। एक समझदार ताजिर जानता है कि लोगों से बात कैसे करनी है। कोई भी जिसके नीचे लोग काम कर रहे हैं, अगर वो समझदार हैं, तो वो जानता है कि उन्हें लोगों की हौसला अफजाई करना है। कभी भी ऐसा ना करें कि जब भी वो कुछ गलत करें आप उन्हें दुरुस्त करें, मगर जब भी वो कुछ दुरुस्त करें आप कभी भी उनकी तारीफ ना करें। एक समझदार औरत अपने घर का निजाम चलाना जानती है ताकि वो सब काम वक्त पर कर सके। वो अपने बच्चों को संभालना जानती है। वो घर का बेहतरीन निजाम चलाना जानती है। एक समझदार इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझता है। और लफ्ज फहम जिस पर हमने मजीद बात करनी थी, मुझे ये पसंद है। इसका मतलब है कि आपको ऐसा महसूस होता हो कि शायद कोई चीज बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं मालूम हो रहा। ये फहम है और आपका जहन शायद समझ ना पाए कि मसला क्या है। लेकिन अगर आपको रूह में किसी ऐसे काम के लिए जो आप करने को है महसूस हो रहा है कि कुछ गलत है, तो फिर खुदा आपको फहम दे रहा है। आप इसे अभी शायद समझ ना सकें, लेकिन ये फहम है जिसे आपको थामे रहना है और फिर इंतजार करना है। और फिर आता है शऊर, और मुझे शऊर पसंद है क्योंकि आप जानते हैं एक बाशऊर इंसान राज रख सकता है। आज बहुत से लोग हर बात जो वो सुनते हैं उसे बोल देते हैं और सबको बता देते हैं। मेरे दोस्त हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन चंद एक, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं कि अगर मैं उन्हें कुछ बताऊं तो मुझे उन्हें ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि किसी को मत बताना, क्योंकि उनमें शऊर है, वो बाशऊर हैं और उनमें इतनी हिकमत है कि वो जानते हैं कि उन्हें मेरी बात किसी को नहीं बतानी।